Hello everyone, myself Srimati K.D. Mishra, Mahatma Gandhi Vidya Mandir Sanchalit MHG Junior College, Malegaon Camp. So welcome all of you in class 11th Commerce. So today's your subject SP Secretarial Practice chapter number 4 documents related to formation of a company. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, व्हाट इज़ क्लास या टाइप्स ऑफ क्लास। अब इस वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। व्हाट डू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या व्हाट इज़ प्रोस्पेक्ट्स। सो नाउ लेट्स सी। First of all, introduction of articles of association. Article of association means क्या, इसका मतलब क्या होता है कि articles of association is the second most important documents which needs to be filled with the ROC along with the memorandum at the time of incorporation of a company. You know what very well, I think there are two types of document is most important for your forming or your company. First one, memorandum of association, and next one, article of association. So article of association means ये एक स्ट्रक्चर है, या आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंटरनल मैनेजमेंट के लिए दैट्स अननेसेसरी प्रोसीजर या दैट्स अननेसेसरी डॉक्यूमेंट फॉर यू कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आपकी कंपनी में इंटरनल मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व करनी चाहिए, ये सब दिया जाता है। सो नाउ this document is a subordinate secondary to the memorandum. It is like the bylaw of the company as it contains rules and regulations that governs the internal management of the company. Is a defense, it's a powers, rights and duties of the board of directors and officers, and also the manner in which the business of the company will be carried on. Its established relationship between the company and its member and also between the members. यानी कि इसमें कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो ऑफिसर्स है, जो मेंबर्स है, उनका रिलेशन कंपनी के साथ, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उनको कौन कौन से पावर दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं या ड्यूटीज़ है उनकी, या मेंबर्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, ये सब मेंशन किया जाता है। ओके, so next point, definition of article of association. As per section 2(5) of the Company Act 2013, articles means the articles of association of a company as originally formed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law or of this act. So आर्टिकल एसोसिएशन एक इस तरह की फेम होती है, लीगली फेम होती है, लॉफुल फेम होती है। उसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एक एक्ट को लिख के उसमें अगर चेंजेस किए हैं और वो प्रीवियस कंपनी लॉ के एक्ट के अंदर हो, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
So this article is a legally document is written which contain rules and regulation which help in internal management of a company, as every company may be managed differently. The Companies Act 2013 does not specify the exact content of the article. However, the regulations given in the articles should not exceed the power of the company as laid down by its memorandum or contradict the Company Act 2030 और any other laws. यानी कि देखिए हमारी कंपनी अलग अलग टाइप्स की रहती है, कभी 7 मेंबर्स की डायरेक्टर्स की रहती है, कभी 2 या कभी 1. उसके हिसाब से आपको क्या करना होता है, उसके हिसाब से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्लानिंग करनी होती है. So, article of association usually includes rules and regulations regarding power, rights, and duties of governing body, issue of shares, call on shares, forfeitures of shares, and procedure for transfer and transmission of shares and debentures. यानी कि जो आपकी कंपनी होती है तो कंपनी में जो शेयर्स होते हैं उनका कॉल करना या जो डिबेंचर्स होते हैं तो उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन आपको फॉलो करने होते हैं. पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है गवर्नर बॉडी की, वो आपको इसमें इन्वॉल्व करनी होती है. और शेयर्स ट्रांसमिशन कैसे करने हैं, ट्रांसलेट कैसे करने हैं, वो भी इसके अंदर दिया जाता है. So Company Act has given the format in the form of a model articles. So you know what model articles? So involved in table F, G, H, I, and J for preparing the article of association for different types of company. So there are 3 types of company. So a variable type of company, so variable type of article of association you can use in your company या for your company. जिस तरह से आपकी कंपनी होगी उसी तरह से आप क्या करोगे, आप आर्टिकल एसोसिएशन बनाओगे. So a company is free to include all or any of the regulation contained in the model articles as applicable to such a company. As per the act, article must be signed by all the subscribers who has a signed memorandum and give their details like name, address or occupations in the presence of at least one witness who shall sign and attest the signature and also give his detail. यानी कि जो कंपनी रहती है तो कंपनी के अंदर मेमोरेंडम पढ़ के उस पर साइन करनी होती है और साइन आप एक विटनेस यानी कि गारंटेड होगा उसके सामने आप क्या करोगे, साइन करोगे. उस पर आपकी साइन, एड्रेस और आपका व्यवसाय लिखा गया होता है. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, कंटेंट ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन. So what do you mean by content of article of association? So a company may adopt the model articles and given by the Company Act 2013 or add additional matter as per its requirement. अल्ट्रेशंस या चेंजेस इसके अंदर होगी, या अगर आपको
चेंजेस करने हैं तो कंपनीज एक्ट 2030 उस लॉ का एक्ट करके इस्तेमाल करने हैं और वो रिक्वायरमेंट आपको करनी है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यूजुअली कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द फॉर्मिंग मैटर्स। और आपको अगर चेंजेस करने हैं तो उस चेंजेस के लिए आपको जो मैटर है, जो रिक्वायरमेंट है, वो आपको फॉलो करनी पड़ती है। तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कैपिटल, शेयर एंड देयर वैल्यू एंड देयर डिवीजन इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, राइट ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड अ प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट। उसके राइट्स क्या हो गए शेयर होल्डर के, और प्रोसीजर relating to allotment of shares, making of calls and forfeiture of shares, rules relating to transfer and transmission of shares and the procedure to be followed। अगर आपको आपके शेयर्स ट्रांसफ़र करने हैं, ट्रांसमिशन करने हैं, तो उसके लिए आपको रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। क्लियर on the company as shares allotted to the members for the amount unpaid by them। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स है पर वो शेयर्स शेयर होल्डर ने खरीदी की है, पर खरीदी करने के बाद उन्होंने क्या है अनपेड अमाउंट की है, तो उसके बदले में आप कुछ तो कुछ उनका रख लोगे, यानी कि उनकी कोई असेट, कार या घर की अगर उन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स की अमाउंट पेड नहीं की तो उसकी वो गारंटेड उस चीज़ को मानेंगे और वो हासिल करेंगे ना। उसके बाद इंक्रीज अल्ट्रेशंस और रिड्यूशंस ऑफ शेयर कैपिटल, कैपिटल में बड़ा या कम होना या कुछ चेंजेस हुए तो अपॉइंटमेंट, remuneration, power, duties etc. of the director and officer of the company, यानी कि कंपनी में पावर्स, ड्यूटीज या रिम्यूनरेशन या अपॉइंटमेंट इनको इन्वॉल्व किया जाता है। प्रोसीजर फॉर कन्वर्सिंग ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइस वर्सा, यानी कि चेंजेस यानी कि कन्वर्टिव या कन्वर्शन किया जाता है। प्रोविजंस रिलेटेड टू बोर्ड, कमिटी एंड जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ मेंबर्स, प्रॉक्सी, कोरम, पोल, एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग, ये क्या है होती है इसमें जो आर्टिकल एसोसिएशन होता है उसमें ये समिति का सहभाग होता है। कौन कौन सी? बोर्ड रिलेटेड, कमिटी, जनरल मीटिंग या वोटिंग राइट्स मेंबर या प्रॉक्सी या कोरम या फोर्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ट्रांसफर ऑफ मनी टू रिजर्व, डिक्लेरेशंस ऑफ डिविडेंड एक्सेट्रा, यानी कि ट्रांसफ़र आपका ऑडिशन करोगे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स करोगे या ट्रांसफर ऑफ मनी करोगे या रिजर्व डिक्लेरेशन के डिविडेंड के लिए, ये अलग अलग विभाग होते हैं। तो बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड मोड ऑफ बोरोइंग, यानी कि कर्जा आप कर्ज कैपिटल आप लोगे, इशू करेंगे, तो उसके लिए ये मोड्स ऑफ बोरोइंग्स रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग अ प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर्स सर्टिफिकेट, यानी कि डुप्लीकेट सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए तो भी इसमें उसके बारे में रूल्स और रेगुलेशन दिए जाते हैं। कंस्टिट्यूट एंड कंपोस्टेड एट ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन कमिटी एंड कॉर्पोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, यानी कि यह जो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा उसमें आपको इन कमिटियों को भी इन्वॉल्व करना है। प्रोविजन फॉर अमेंडिंग ऑफ अ कंपनी
उसके बाद जो कंपनियां होती है उसके लिए शेयर्स आप क्या करते हो या शेयर्स इशू करते हो और उसके बदले में कैपिटल रेज करते हो. यू आल्सो increase capital for your company. Now next point, articles of association of a private company must contain three restrictions. Limit the number of members to 200. यानी कि अगर मेंबर होगी तो कितने मेंबर होंगे? 200 मेंबर होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट राइट टू ट्रांसफ़र शेयर्स, यानी कि उनको वो शेयर्स ट्रांसफ़र करने के जो रिस्ट्रिक्शन होंगे. प्रोविड्स इनवाइटिंग पब्लिक टू बाय इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स और एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी. वो डिबेंचर्स और सिक्योरिटी दे सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. अल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन मीन्स आप क्या करोगे, उसमें चेंजेस करोगे कि अल्टरेशन करोगे, अल्टर करोगे. द कंपनी एक्ट स्टेट दैट सब्जेक्ट टू बी प्रोविजनल ऑफ द एक्ट एंड द condition contained in the memorandum of association, the company can alter its articles of association by passing a specific special resolution in the general meeting of the company. अगर आपको आर्टिकल एसोसिएशन में चेंजेस करने होते हैं इसके लिए आपको एक ठराव पास करना होता है और उस ठराव को हम क्या कहेंगे, स्पेशल रिजोल्यूशन. स्पेशल रिजोल्यूशन आपको जनरल मीटिंग में पास करना होता है. अल्ट्रेशन इन द आर्टिकल्स अपॉइंट द मेंबर्स इन द सेम वे एज द ओरिजिनल आर्टिकल डिड. तो सेम थिंग, अ कंपनी कैन अल्टर इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इन द फॉलोइंग वेज. अब आप कब वो आर्टिकल्स चेंज कर सकते हैं, बाय अडॉप्शन ऑफ न्यू सेट ऑफ आर्टिकल्स, बाय डिलीशन ऑफ एन आर्टिकल्स, बाय एडिशनल ऑन इंसर्टिंग ऑफ न्यू आर्टिकल्स, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल्स, बाय एमेंडम ऑफ एन आर्टिकल्स. यानी कि आपको जब कंपनी का नाम बदलना हो या कुछ तो आप उसमें क्या करोगे, ऐड करोगे या कुछ तो लेस करोगे या रिमूव करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करोगे या एडिशनल करोगे या इंसर्टिंग करेंगे या अमेंडमेंट एक शब्द उसको कट आउट करेंगे. जब भी आप ये सब करोगे तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट, prospectus. So prospectus means when a public company is collecting capital by issuing shares to the public has to issue a document called a prospectus. यानी कि शेयर के बारे में क्या उस प्रॉस्पेक्ट में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन दी जाती है. सो प्रॉस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट अबाउट द कंपनी एंड इनवाइट्स द इन्वेस्टर टू बाय द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द कंपनी. यानी कि कंपनी की एक मैगजीन होगी या प्रॉस्पेक्ट होगी कि वो क्या करेंगी, उनकी कंपनी चलाने के लिए देन कलेक्ट capital from shareholder, debenture holders. Now that's invitation to investor. उनको क्या करेगी, खुद की कंपनी के जो शेयर्स है वो खरीदने के लिए इनवाइट करेगी. सेक्शन 270 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 defines prospects
as any document described or issued as a prospect and included articles 32 or hearing prospect of ship prospect and notice circulars advertisement or other documents inviting offer from the public for the subscribed or purchase of any security of a body corporate यानी कि बॉडी कॉरपोरेट जो रहेगी वो एडवर्टाइज के माध्यम से सर्कुलर के माध्यम से या नोटिस के माध्यम से वो क्या करेगी अदर डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग ऑफर देगी या पब्लिक को ऑफर करेगी कि सब्सक्राइब करे क्योंकि वो शेयर खरीदी करेगी. द प्रोस्पेक्ट्स मस्ट कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल disclosures and investor decide to invest based on the information given in the prospectus. Type of prospect issued by a company. So there are 5 prospects: abstract prospect, shape prospect, red herring prospect, and letter of offer of letter. So abstract prospect is a content of a prospect, but it's a brief. It is attached with application form issued by the company when offering its security. यानी कि सिक्योरिटी कब ओपन होने वाली है वो इंफॉर्मेशन इसमें दी जाती है शॉर्ट में. नेक्स्ट शेप prospects. A public company may raise fund from the public by issue security, and it when a need more fund for every such issue. Fresh prospect is to be issued. The prospect of preparing and registering a prospect is a very time consuming. यानी कि बार बार आप ऑफर करने से बेहतर है कि एक ही बार या उसका मिनी एक परमिट होगा उसे हम शेप प्रॉस्पेक्ट होगा और वो करके भी आप क्या कर सकते हैं कि बार बार वही काम करने से अच्छा है कि उसके बदले में इस प्रॉस्पेक्ट का आप क्या करेंगे इस्तेमाल करोगे. सो हाउएवर एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम it to be filled with the ROC every time a subscribed offer of security is made during the validity period of 1 year of the shape prospect. 1 साल के लिए आप क्या करोगे इस prospect का इस्तेमाल करोगे या इसमें शॉर्ट में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्या करोगे इंफॉर्मेशन दोगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट red herring prospects. So what do you mean by red herring prospect? A red herring prospect is a kind of incomplete prospects as it does not include complete particulars of the quantity of shares securities offered or the issue price of the security being offered is usually issued at the time of IPO for any issue done under the book building process. यानी कि जो ये प्रॉस्पेक्ट हो रहा है ये क्या होता है अनकम्प्लीट होता है. इसमें आपने कितने शेयर्स लिए उसका पर्टिकुलर आंकड़ा दिया जाता नहीं है या क्वांटिटी दी जाती नहीं है. दैट्स इनकम्प्लीट प्रोसीजर. सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट लेटर ऑफ ऑफर. व्हेन अ कंपनी अंडरटेकन फॉर द इशू ऑफ शेयर बाय मेकिंग राइट इशू ऑफरिंग शेयर्स और डायरेक्टली टू इट्स एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन अ प्रोस्पेक्ट टू द शेयर्स होल्डर. यानी कि जो आपके शेयर्स होल्डर होते हैं उनको वो क्या करती है एक एक्स्ट्रा शेयर होल्डर या शेयर्स उस शेयर होल्डर को देती है. सो लेटर ऑफर इज कंटेन द डिटेल ऑफ द ऑफर.
ऑफर लेटर मीन्स एन ऑफर लेटर इज इशूड द सिलेक्ट ग्रुप, यानी कि सो स्पेसिफिकली ग्रुप होता है उनके लिए ये शेयर्स दिए जाते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स वेयर अ कंपनी इज ऑफरिंग इट्स शेयर्स टू एन सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर, यानी कि जो सिलेक्टेड ग्रुप हो गए उनको ही ये ऑफर दी जाती है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, शेयर्स खरीदी करनी चाहिए. एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मिस स्टेटमेंट इन अ प्रॉस्पेक्ट्स. अगर मिस स्टेटमेंट अगर आप करोगे तो उसके बारे में क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या पनिशमेंट हो सकती है, ये इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. एज अ इन्वेस्टर मेक देयर डिसीजन invest based on the information given in the prospectus should be taken and ensured all the information are accurate and no material fact is omitted, and untrustworthy statement or misstatements means the statement is misleading in far on content or where an inclusion of a statement or it मिसिंग इज़ लाइकली टू मिसलीड टू रीडर, यानी कि गलती से आपने गलत प्रॉस्पेक्ट में कुछ इंफॉर्मेशन डाली हो तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है ये भी दिया जाता है. इट्स एन इन्वेस्टर हैज़ अबाउट शेयर्स फॉर अ कंपनी बेस्ड ऑन प्रॉस्पेक्ट विच हैड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन और suppressing material information, he can take action against the company if there is any alter of misstatement is a prospect. The company as person responsibility for issuing such a prospects we have to face following liability, यानी कि liability यानी कि कानून में या कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, दावा कर सकते हो कि प्रॉस्पेक्ट ने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गलत है और उसमें लाइबिलिटी इन केस ऑफ मिस स्टेटमेंट में सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी दी गई है. सो सिविल लाइबिलिटी में जो है वो पे कंपनसेशन फॉर लॉस सफर्ड बाय इन्वेस्टर को जो फंसाया गया है इसीलिए वो इन्वेस्टर क्या कर सकता है, केस दाखिल कर सकता है. क्रिमिनल लाइबिलिटी में कंपनी और इट्स ऑफिसर के बारे में आप क्या कर सकते हो, केस दर्ज कर सकते हो. ओके, थैंक्स अ लॉट. चैप्टर नंबर 4 डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी. इस चैप्टर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखा एंड प्रॉस्पेक्ट्स देखा और टाइप्स ऑफ प्रॉस्पेक्ट देखा. सो थैंक यू.